कहाँ स्टार्ट कीजिए? ये हो गया है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ग्रुप्स, sense consensus, voting, and compromise. These are the group processes, and these are the decision making processes. How you can make your decision, or how a group can make a decision. So these are the following few steps through which you can make or carry out your decisions. That is consensus, voting, and compromise. Consensus, voting, and compromise. These are the three factors through which you can increase or make your decision making processes a little upgrade, or you can upgrade it through this three simple steps. Now, you look at what is been written over here. Groups often need to make Groups often need to make decisions, and there are various approaches to ensure the process is fair, efficient, and results in buy-in for members. Okay, so this is the most important parts, and here this line describing how this group make a processes. Now this group often need to make lots of decisions making. Okay, and this lots of decisions making need to have a particular means goal oriented perceptions. Okay, goal oriented perceptions. And now there are various ways, approaches means there are various ways, various lines, various means approaches are there through which you can ensure this process in a very efficient and in a result oriented, in a very, what you can say, in a very efficient and result oriented way, you can grow, follow this process. Now number one is consensus. This is the number one process, that is consensus. Now what is this consensus means? This is the ideal approach. Okay, this is the ideal approach where all members agree on financial decision. It requires often discussion, considerations of all perspectives, and willingness to compromise. And willingness to compromise, this is called consensusness. Okay, consensus. Okay, now again I am trying to make you understand. Now this is an ideal approach. Ideal means very perfect approach where all members agree on the final decisions. Obviously, if you are making a meetings, if you are making a group, if you formed a group, and through this particular group you need to form any final decisions on it, so everybody needs to come under one table, and finally you need to support the decisions. Okay, it requires open discussions, and to finalize this discussion, group meetings or group discussions or whatever, you need to have an open discussions. Open discussions means in an open forum you can able to speak anything, whatever that comes to your mind regarding the progress, regarding the improvement of any organization. Okay, say for example, top level managements of any company, they are now trying to make a decisions on how to reach the target oriented goal. Now, to reach that target oriented goal, say for example, the companies make a group meeting, the companies call for a meeting. Now, every group members from lower level to upper level management, they comes under one roof and one under sit on the one table. Okay, sit on the same chairs and make it, they come under one table and they try to finalize the decisions. Okay, now
One of the most important aspect of this group decision making is that everybody from lower level management to upper level management had to speak, had to share his ideas, perception, thought, ideas, whatever you say. And this is one of the positive impact that will going to fall on the company. Okay, why I'm saying that? If a top level management doesn't listen to the lower level workers or the lower level employees or the executives of any organizations, if they are not able to speak in front of the management, then management will never ever going to understand the root of the problems. They cannot go to the roots of the problem. And for this, it is very important and it is necessary that you need to talk to the lower level management. So, whenever any group formation is there, whenever there is a decisions making is there, okay, you need to have this formation. You need to have this formation. आपको ये formation group formation में आपको जाना है और बात करना ही है. ठीक है, ये आपको अगर आप लोअर मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आप सुनना नहीं चाहते हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हो, फिर क्या होगा? आप जड़ तक, प्रॉब्लम्स की जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे. और आप कितने भी मीटिंग्स कर लो, वट एवर द मीटिंग्स यू विल डू, वो कभी भी 100% फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको कभी नहीं देगा. कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट या 100% रिजल्ट आपको, रिजल्ट ओरिएंटेड जो कि आप चाहते हो कि ये मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड हो, वो कभी आप तक नहीं पहुंचेगा. इसीलिए जब भी कोई ग्रुप मीटिंग्स या ग्रुप फॉर्मेशन होता है, हमेशा देखिएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट का कोई एक रिप्रेजेंटेटर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का कोई एक रिप्रेजेंटर हमेशा उस ग्रुप में रहता है. तब जाके उनको भी, उनका भी पक्ष रखने के लिए हाई लेवल मैनेजमेंट में बोला जाता है कि आप भी अपना पक्ष रखिए, आप भी अपना विचार, आइडियाज, थॉट्स, परसेप्शन जो भी है आप अपना इस टेबल पे शेयर कीजिए, यहाँ पर शेयर कीजिए. उनकी बात को सुना जाता था और जहां तक संभव हो सके रिजॉल्व किया जाता था और एक डिसीजन, एक पॉइंट पे आया जाता था और डिसीजन मीट किया जाता था. अगर ये चीज होता है तब जाके कोई ग्रुप मीटिंग्स या ग्रुप फॉर्मेशंस जो भी आप बनाते हो वो जाके फाइनलाइज होता है और आप गोल तक पहुंचते हो. ये प्रोसेस है. इट इज कॉल्ड कॉन्सेंसस प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ कॉन्सेंसस प्रोसेस. ओके, देखो जो डिसीजंस के बाद कॉन्सेंसस में फाइनल डिसीजन के बाद कॉमा देखिए, फुल स्टॉप देखिए, एक लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन को थोड़ा सा गौर करो. इट रिक्वायर ओपन डिस्कशंस, considerations of all perspectives and willingness to compromise. ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी हैज टू compromise, everybody has to support, everybody has to consider in all perspectives. तब जाके वो डिसीजन फाइनल होता है. ठीक है, जबरदस्ती कभी नहीं होता है. जबरदस्ती अगर हाई लेवल मैनेजमेंट का मीटिंग्स होता है, अगर वहां पर टॉप डाउन लेवल जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप नहीं बुलाते हो, उनको नजरअंदाज करके आप मीटिंग्स कर देते हो और जो भी डिसीजन हो आप स्प्रेड कर देते हो, वो कुछ हद तक सक्सेस होता है लेकिन बाद में फिर से वो फेलियर की तरफ चला जाता है. इट्स अगेन लीड टू द फेलियर. व्हाई? बिकॉज यू doesn't like to reach to the level, ground level of the प्रॉब्लम्स. आप जड़ तक पहुंचना ही नहीं चाहते हो. अगर जड़ तक नहीं पहुंचना चाहते हो तो फिर आपको वही टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स करना पड़ेगा. भीतर क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल में कैसा वर्क चल रहा है, आप कभी जान ही नहीं पाओगे. उनका मोटिव्स क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका आइडियाज क्या है, उनका थॉट्स क्या है, ये कभी नहीं आपने जानने की कोशिश किया तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है. तो कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जहां पर हर एक ग्रुप मेंबर्स को ये अधिकार होता है कि वो अपना जो भी आइडियाज है वो शेयर करे और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेशंस एंड विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज
इस पर वो आए, तब जाके वो कंसेंसस या सक्सेसफुल ग्रुप मीटिंग्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वोटिंग। अनदर इंपॉर्टेंट मीन्स प्रोसेस ऑफ ग्रुप मीटिंग, ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज voting. Voting is another important step to create a decision making process. एक another important step है जो कि vital और important step है। क्या? voting. This is a moral approach. I'm sorry. This is a formal approach where members express their preferences through a ballot. Okay? Voting can be useful for quick decisions or when there are many options to consider. Okay? When many options are there to consider, then it is called voting. So what is voting? This is a formal approach. ये एक formal approach है। Formal, एक formal means representations या presentations होता है, एक formal presentation होता है जहां पर members अपना preferences को express करता है through ballot, means through vote। ठीक है, जैसे आप जानते हो लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव में जो भी कैंडिडेट्स अपना ऑपोजिशन पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी कैंडिडेट को डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स वो अपना रिप्रेजेंटेटिव डालते हैं, कैंडिडेट डालते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। हम फिर अपना एक्सप्रेशन जो है, अपना आइडियाज जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वोटिंग के माध्यम से इनको फिर चुनाव में जिताते हैं। किसी को हरा देते हैं या फिर किसी को जिता देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, हम अपना जो एक्सप्रेशन है, आइडियाज है, वो हम थ्रू बैलॉट हम शेयर कर रहे हैं, थ्रू बैलॉट हम उसे शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इससे पता चलता है, अगर सपोज से फॉर एग्जांपल इस जगह पर कदमा बिष्टुपुर एरियाज में कोई ऑपोजिशन पार्टी इस बार जीता है, जो हर साल जीत आया था वो नहीं जीता है, ऑपोजिशन पार्टी के कोई लीडर यहाँ पर जीता है। आई डोंट वांट टू रिलेट द नेम। नाउ इससे क्या होता है, जनता जनार्दन ने अपना जो भी आइडियाज है, एक्सप्रेशंस है जो है, वो अपने बैलेट या वोट के माध्यम से सरकार को बता दिया गया है कि सरकार, हम इस कैंडिडेट को चुनते हैं बिकॉज हमारा ये फॉलोइंग मोटिव है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा एक्सप्रेशंस है, और हम इस चीज को मानते हैं, और हम इसीलिए इस कैंडिडेट को हमारे नेता के तौर पर अगले 5 साल के लिए हम उसे चुनते हैं। दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द कंडीशंस। ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है, थर्ड है कॉम्प्रोमाइज। The third one is compromise. This involves finding a solution that satisfies most, if not all, members. It requires a willingness to give up something to achieve a common goal. Okay. Now, the choice of decision making method depends on the context, the complexity of the issue, and the group's dynamics. This is another important part. क्या है कॉम्प्रोमाइज? ये कॉम्प्रोमाइज क्या है? ये एक सॉल्यूशन है जो फाइंड आउट करते हैं क्या, दैट सेटिस्फाइड मोस्ट, जो कि मोस्टली सेटिस्फाइड करते हैं क्या, दैट इफ नॉट ऑल मेंबर्स, इट रिक्वायर्स अ विलिंगनेस टू अचीव अ कॉमन गोल. The choice of decision making method depends on the context, the complexity of the issue, and the group dynamics. Compromise का मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। Compromise का मतलब, सपोज there are 5 or 6 members are there in a group.
ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबने अपना आइडियाज दिया, सबने अपना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज शेयर किया। एवरीबडी शेयर डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीबडी। तो हो सकता है कोई 2 जन उस बात से एग्री हो, अगला 5 जन या फिर 4 जन एग्रीड ना हो सकता है 3 जन एग्रीड हो, 3 जन ना हो। फिर क्या रास्ता होता है? एक कॉम्प्रोमाइजिंग का रास्ता होता है। कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या है? कि मैं भी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं अपनी तरफ से, आप भी अपनी तरफ से कुछ सैक्रिफाइस कीजिए। इक्वल, म्यूचुअल, जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। ओके, इससे क्या होता है कि मतलब क्या, एक पॉइंट पे हम लोग मतलब तो सर पहुंचे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं एक दूसरे में। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, उस उससे थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग है। कॉम्प्रोमाइज अंडरस्टैंडिंग अलग है। कॉम्प्रोमाइज कर लेना मतलब क्या, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को फिर झुका समझौता लेते कर हो, लेते हैं। समझौता आप कर लेते हो, झुक जाते हो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करता हूँ, लेकिन मैं भी जो बोल रहा हूँ आप भी उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए, तब जाके ये सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा। रिसेंटली मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे ये चीज और क्लियर हो जाएगा। आप जानते हो कि कदमा रीजन एरिया से ईस्ट जमशेदपुर, ईस्टर्न जमशेदपुर या कदमा, जो ईस्टर्न जमशेदपुर मतलब कदमा एरिया, सोनाली एरिया जो होता है, वहां से इस बार बन्ना गुप्ता हार गया है। ओके, अपना जो झारखंड जनमुक्ति मोर्चा मोर्चा ने अपना जो कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा किया था, दैट इज बन्ना गुप्ता, ही लॉस्ट। और उन्होंने, उनका जो लॉस था, कम से कम 1000 वोट से वो 2000, 3000, 4000 वोट से वो हार गया। यहाँ पर सरयू राय अपना खाता खोला, मीन्स सरयू राय वोन रहा है, तो सरयू राय वोन द इलेक्शन। सरयू राय का जीतना मतलब कि बीजेपी यहाँ अपना स्ट्रॉन्ग दावेदार खड़ा कर दिया। अब बन्ना गुप्ता आप जानते हो, इतने साल वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, ऊपर से कदमा एरियाज में वो एमएलए सर। भी रहे, और बहुत सारा डेवलपमेंट भी किया है। तो टाटा स्टील प्लांट का बहुत सारा काम उन्होंने किया है, जिसकी वजह से टाटा स्टील प्लांट ने उनको एक जगह दिया है, प्लॉट एकदम रोड के ऊपर। आप कभी कदमा वो गोल चक्कर के पास आओगे तो देखिएगा, गोल चक्कर के पास उनका एक ग्रीन कलर का जो रोड के ऊपर जगह, प्लॉट खाली पड़ा, जिसमें वो मकान बना के वो अपना ऑफिस बनाए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले उन्होंने बनाया था, कैमरास वगैरह लगाया था, एसी वगैरह लगाया था, क्योंकि बन्ना गुप्ता को लगता था कि इस बार भी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जीत रहा था। बिकॉज मांगो में जो मुस्लिम वोटर्स है वो बहुत सपोर्ट करते हैं बन्ना गुप्ता को, जिसकी वजह से वो हर बार जीत जाता है। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया। ठीक है, तो टाटा स्टील प्लांट वालों ने का बहुत सारा काम बन्ना गुप्ता ने अपना टेंडर निकाल कर दिया था, जिसकी वजह से टाटा स्टील प्लांट का जो मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट था, उन्होंने खुश होके टाटा स्टील प्लांट का एक जगह, एक लैंड एक्वायर करके बन्ना गुप्ता को एज अ रेसिडेंट वहां पर परमानेंटली स्टैब्लिश करने के लिए कहा गया था। अब आप गोल चक्कर कभी आओगे कदमा में, वहां पर वो घर बना हुआ है जमशेदपुर का। कुछ दिन पहले, अब मैं एक्चुअली में आ रहा हूँ, बात पे आ रहा हूँ, ये आपको मैंने आउटलाइन बता दिया ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब असली मुद्दे पे आ रहा हूँ। रिसेंटली मतलब क्या हो रहा है, 2024 इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब 1 से 1.5 महीना पहले, दिसंबर में, इन मतलब आफ्टर 25 दिसंबर, पर क्रिसमस के बाद एक दिन रात को 8:30-9 बजे, एज बिकॉज मैं भी कदमा के रेसिडेंस हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ, हंगामा हो गया था। एक दिन रात करीब 8:30-9 बजे, आ, तब तक तो सरयू राय तो जीत चुके थे अपना इलेक्शंस, और बन्ना गुप्ता हार चुका था। तो सरयू राय अपना पूरा, मतलब पूरा दल सब लेके, दल बल अपना विधायक सब लेके एक दिन कदमा एरिया पे आ गए, भारी पुलिस प्रोटेक्शन में, और बड़ी हंगामा किया कि ये सब जो बना हुआ है ये सब तोड़ देना पड़ेगा। बहुत सारा सुविधाएं होती है पब्लिक को चलने के लिए। तो उसी रात बहुत सारे पब्लिक ने जोश जोश में
बहुत सारा दीवार जो कि बना गुप्ता ने जबरन मतलब जबरन नहीं बोल सकता मैं, उसको कब्जा करके रखना, मतलब वहां से इंसान को पास नहीं करने देना, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कदमा एरियाज में। इसलिए क्या हो गया था, ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड हो गया था। तो ये शिकायत सरयू राय को अच्छा। पास किया था। तो सरयू राय उस दिन रात को 9 बजे वो अपना पूरा प्रोटेक्शंस, पूरा अपना दल बल लेके आया था। और यहाँ से पन्ना गुप्ता का भी बहुत सारा जो मतलब उनका जो ग्रुप फ्रेंड्स या उनका भी जो सपोर्टर्स थे वो भी बाहर आए। एक हाथापाई हुआ थोड़ा सा, पुलिस किसी तरह से कंट्रोल किया, और सरीला तो जीत चुका था, ही इज द विनिंग कैंडिडेट ऑफ दिस कर्मा ईस्टर्न रीजन। उन्होंने तुरंत स्टे ऑर्डर ला दिया, ये एरियाज को तुरंत खाली करवाया जाए, और ये जो जितने भी ब्लॉकेजेस पहले विधायक जो कर गए थे ये सबको तोड़ देना चाहिए रातों रात। बहुत सारा वो लेटर पास करवाया। दूसरे दिन ने बुलडोजर चल गया क्या? दूसरे दिन आके बुलडोजर चल के वो पूरा सपाट करके चला गया। अब आप कभी कदमा गोल चक्कर में आइएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड अब जैसे गोल चक्कर वो झरना के पास आई वहाँ गोल चक्कर सर कहाँ पे बोल रहे गणेश मैदान या फिर ये गणेश आपका मैदान। वेंकटेश टाइल्स के यहाँ पे जहाँ पे आपका मस्जिद वगैरह है? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप गणेश मैदान से थोड़ा आगे आओगे तो वो एकदम गोल वो चक्कर में थिएटर जहाँ वाला पर ग्राउंड जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? वहां से भी थोड़ा आगे गोल कदम चक्कर, मतलब एक मेन रोड आपके इधर पर हाई रोड की तरफ जा रहा है, एक आपकी बाजार की तरफ जा रहा है, एक बिष्टुपुर की तरफ निकल रहा है, चौराहा बोलता है जिसे कलमा चौराहा है। बहुत सारा एक बहुत बड़ा देखिए सर्कल बना हुआ है, आप आइएगा अच्छा वो अच्छा, सर्कल। हाँ याद आ गया, ठीक 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 ठीक। वहाँ पे एक आशा प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ हाँ, यस यस यस। ठीक ठीक हाँ ठीक, याद आ गया। यस, हाँ हाँ, अब वही जगह पर आप आइएगा, तो जैसे ही आप उस गोल चक्कर के हाँ, लेफ्ट वहाँ साइड पे एक देखिएगा। पार्टी ऑफिस है। हाँ, जैसे ही आप उस लेफ्ट साइड में जाइएगा, देखिए बहुत सारा क्लोजर्स जो बना हुआ था, ब्लॉक बना हुआ था, ब्लॉक सब क्लियर कर दिया गया है। रातों रात वो सब कुछ हटा दिया गया है। दूसरे दिन आगे बुलडोजर तो वो अब बहुत सुंदर रास्ता बना दिया गया है। तो अब ये क्या हुआ, बन्ना गुप्ता और सरयू के बीच, पार्टी के बीच में, जेएमएम के बीच और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। क्या हुआ कॉम्प्रोमाइज ये हुआ, अब एक्चुअली तो बना गुप्ता हार चुका था। अब वो क्वार्टर जो था वो हैंड ओवर कर देना पड़ा था, क्योंकि वो टाटा स्टील के प्रॉपर्टीज उनको दिया था, और वो प्रॉपर्टीज में उनको रहने के लिए दिया था। फिलहाल वो जब हार चुके थे तो उनको टाटा स्टील वाले ने कहा कि आप वापस कर दीजिए, क्योंकि हम जीतने वाले कैंडिडेट को ही ये दिए थे, तो आप हार चुके हैं, तो हम ये चाबी सरयू राय को दे देंगे। ये टाटा स्टील का बहुत बड़ा इशू हुआ था, टाटा स्टील वाले को ये बना गुप्ता को बुला के ये बोला गया था। तो फिर सरयू राय ने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, यही है दिमाग वाला देखो खेल, ये मतलब दोनों भैंसा है, बिहारी भैंसा, लेकिन इस बिहारी सरयू राय में बहुत सारा दिमाग है, बिकॉज ये एन एजेड पर्सन, और बहुत मतलब वो कोल्ड वॉर टाइप का है, और बन्ना गुप्ता ऐसे गर्म दिमाग वाला है, तुरंत हंगामा कर देता है, वो ऐसा नहीं है। उसने कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उसी के उन्हीं के पास रहे, आई डोंट वांट टू, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है, मुझे सरकार ने घर ऑलरेडी दिया हुआ है मानगो में, मैं वहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा, उनको ही रहने दीजिए, लेकिन शर्त है कि ये जो घर के बगल में जितने भी क्लोजर्स ब्लॉकेजेस बना के रखे थे, अब उसको हटाना पड़ेगा। तो ये भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आए कि मैं आपकी इस एरियाज में फिर दखल अंदाजी करने नहीं आऊंगा, ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए मैं डेफिनेटली आऊंगा, लेकिन आपके कंपाउंड, आपके एरियाज में मैं कभी नहीं आऊंगा, आप भी इस कंपाउंड को, एरियाज में नाजायज अपना कब्जा मत कीजिएगा। तो बन्ना गुप्ता भी मान गए, और सरयू राय भी अपना ये किया। तो ये दोनों जो चीज है ये कॉम्प्रोमाइज किया है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जब तक अपना अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं मिलेगा, तब आप कॉम्प्रोमाइज में आइएगा कैसे। इसीलिए आपने जब बोला कि सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने थोड़ा हिचकिचाहट बताया कि नहीं, दोनों अलग होता है। आप जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आइएगा तब ना एक बात का कॉम्प्रोमाइज बनेगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, मतलब हम जब अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, तब ना एक कॉम्प्रोमाइजिंग में पोजीशन में आएंगे कि ये ठीक है, चलो अब मान लेते हैं, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अब तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, चलिए मान लेते हैं, आप भी ये मान लीजिए, मैं भी ये मान लेता हूँ। तो जब दोनों का अंडरस्टैंडिंग मिल गया, तब वो कॉम्प्रोमाइज में आ गया। अब ना तो सरयू राय उन एरियाज में आते हैं लेकिन हंगामा नहीं करते हैं, क्योंकि
जो पब्लिक संस्था खोल दिया गया है और पन्ना गुप्ता तो वैसे ही हरा हुआ है। एक और इंसिडेंट था कि हमारे घर के बगल में एक पार्क बना हुआ था, बन्ना गुप्ता ने ओपनिंग किया था विद्युत राय महातो को देके, विद्युत बरण महातो को देके, और वो पार्क हमेशा ताला बंद करके रख देते थे। जैसे ही जिस दिन समीर राय जीत गया, उसी के 1 हफ्ता के बाद ही वो चाबी और ताला तोड़ दिया गया, सबके सामने। एकदम सुबह मॉर्निंग में आए, प्रशासन को बोले ताला तोड़ दीजिए और यहाँ पर इस पार्क में कभी नहीं ताला लगेगा। ताला तोड़ दिया गया है, चाबी फेंक दिया गया है, अब 24/7 पार्क खुला रहता है। इंसान, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं उस पार्क में। सर ये अनिल सुरपत में है जो पार्क में भी। नहीं, नहीं, ये है रामगढ़ काली मंदिर, नाम सुने हो? रामगढ़ काली मंदिर बहुत फेमस काली मंदिर है। रामगढ़ काली मंदिर आपका कदमा विष्णु कुमारी एकदम मेन लिंक रोड में काली लिंक मंदिर, रोड में, हाँ रामनगर। हाँ। हाँ, रामनगर काली मंदिर, उसी के एकदम पीछे, राम मंदिर के पीछे, बिल्कुल पीछे वो बना हुआ है, बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। उस पार्क की गेट और ताला फिर तोड़ दिया गया था। एकदम ये सब रातों रात हुआ है, रातों रात। मतलब ये है कॉम्प्रोमाइजिंग। समझा पाया? मुझे लगता है इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कोई नहीं दे यस पाएगा। सर। ओके, चलिए मैम, प्लीज नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now, come to the next, formal and informal in group organizations. Formal और informal group। मैं आपको formal और informal का मतलब पहले समझा दूं। Formal का मतलब होता है, suppose say for example, एक simple सा definition मैं आपको बताता हूँ। Suppose you are talking with your manager। अब जब आप मैनेजर से बात करोगे तो आप सबसे पहले बहुत अदबो अदाब से, शिष्टाचार से, बहुत रेस्पेक्टफुली आप अपने हाई लेवल मैनेजमेंट से बात करते हो। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जब आप अपने दोस्तों से या घर में अपने गार्जियन से या भाई बहन से बातचीत करते हो, इनफॉर्मल, और दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ग्रुप होता है। एक फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब क्या है वो, थोड़ा सा देख लेते हैं। Group structures can take different forms depending on their purpose, size, and operating context. Now, formal structures are often hierarchical with clear roles, responsibilities, reporting line. They are typically found in organizations, teams, and committees. This type of structure ensure clarity, accountability, and efficiency. ठीक है? Now, informal structure क्या है? Informal structure are more fluid, often emerging organically within groups. These structures can be based on personal relationship, shared interest, or common goal. They can be equally valuable for collaboration, innovations, and problem solving. Understanding both formal and informal structure within a group is essential for effective management and leaderships. अच्छा, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। अब थोड़ा सा इस चीज को मैं समझा देता हूँ। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर और ऑफन हायरार्कियल। हायरार्कियल का मतलब होता है टॉप, लिख लो कॉपी में, हायरार्कियल, HIERARCHICAL, हायरार्कियल मतलब हाई लेवल जो होता है, दैट इज कॉल्ड हायरार्कियल, हाई लेवल। विथ क्लियर रोल्स, विथ क्लियर रोल्स का मतलब होता है इनका हाई लेवल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव रहता है। उनका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है वो एकदम बिल्कुल क्लियर रहता है। और उनका रिपोर्टिंग लाइंस जो होता है, दे आर वेरी क्लियर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव लेवल के मैनेजर काम करता है, उनका विजन क्लियर है, उनका मिशन क्लियर है, उनका रिपोर्टिंग क्लियर है, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब रोल वो भी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाहर वो कोई काम नहीं कर सकता है। ये है फॉर्मल स्ट्रक्चर। These type of structure
ensures clarity, accountability, and last is efficiency. और ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंट होता है. दिस formal structure are more accountable, efficient, and with common goals and responsibilities. ये होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर. जैसे अब बोलोगे सर ये कैसा हो सकता है, एक समझ लो एक कंपनी का कोई मुलाजिम जो कि एक मैनेजर बना हुआ है, जूनियर इंजीनियर से फॉर एग्जांपल, एक कंपनी कोई एक जूनियर इंजीनियर है, तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए जिसे हम फॉर्मल जूनियर इंजीनियर कहेंगे. उसके सबसे पहला गुण होना चाहिए, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, टीम में काम करता है. दूसरा है उसका विजन बिल्कुल क्लियर है, एवरीडे उसे क्या काम करना है वो जानता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो जानता है, उसका अकाउंटेबिलिटी क्या है वो जानता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. ये है फॉर्मल स्ट्रक्चर. इसी का उल्टा जो है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. इसी का ऑपोजिट, सेम ऑपोजिट इज कॉल्ड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. क्या होता है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आर मोर फ्लूइड. फ्लूइड का मतलब होता है वेरी लिक्विड लाइक, कहीं भी स्प्रेड हो सकता है. फ्लूइड का मतलब वेरी लिक्विड, पानी की तरह है, हर जगह फैल जाता है. ऑफन इमर्जिंग ऑर्गेनिकली विद इन ग्रुप्स, और ग्रुप में इमर्ज होता है. These structures can be based on personal relationship. ये स्ट्रक्चर कहाँ देखा जाता है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ये पर्सनल रिलेशनशिप में देखा जाता है, भाई बहन, माँ पिताजी, हस्बैंड वाइफ, इस तरह का इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में देखा जाता है. दूसरा है शेयर्ड इंटरेस्ट और इन कॉमन गोल. शेयर्ड इंटरेस्ट इन कॉमन गोल का मतलब, कॉमन गोल का मतलब क्या है? सपोज जैसे एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिलीज में, सपोज कोई एक जो गार्जियन डिसीजंस लेता है, सब वो डिसीजंस को मान लेते हैं. सपोज गार्जियन ने कहा है कि घर में एक एलजी का फ्रिज हम लगवाएंगे, तो सब ने पहले अपना एक ओपिनियन दिया, उसके बाद सब ने मान लिया ठीक है हम एलजी ही खरीदेंगे. किसी ने नहीं कहा कि चलिए वर्लपूल देखते हैं, चलिए वीडियोकॉन देखते हैं, चलिए केविन स्टार देखते हैं, चलिए कैलविनेटर्स देखते हैं, चलिए कोई और कंपनीज गोदरेज देखते हैं. नो, हम एलजी वॉशिंग एलजी के ही फ्रिज लगवाएंगे बिकॉज एलजी इज नाउ बेस्ट. एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट. और सब ने फिर खुशी व्यक्त किया कि हमारे घर में एक नया फ्रिज आया. ये नहीं देखा कि ब्रांड क्या है, बस नया फ्रिज आ गया मीन्स ओके. तो ये सारा कुछ जो चीज है इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत लूज है. होना है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. लेकिन कंपनी में ये चीज आप कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल दैट नो कंपनी सर, डाज? नो सर. कभी नहीं कर पाओगे ना. मैंने एक एग्जांपल आपको दिया. कंपनी में आपको अगर कुछ डिसीजंस देना है और उस डिसीजंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है, यू नीड टू थिंक 10 टाइम्स. You need to think 10 times. For example, just now there is a smart class. एक स्मार्ट क्लास बनाया गया है हमारे कॉलेज पे. स्मार्ट क्लास बनाने के लिए एमसीबी बोर्ड होता है, एक स्मार्ट टीवी होता है, प्रोजेक्टर्स ऊपर से ये सब लगवाया गया है. तो जब वो टीवी उस क्लासेस में लगवाया गया था तो उसके लिए टेंडर बुलाया गया था. टेंडर में का जो मीटिंग्स था उसमें प्रिंसिपल सर था, डीन एकेडमिक्स था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और कुछ फैकल्टीज को बुलाया गया था. दोज हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, they are been called in the meetings and they were been suggestions. The management want their suggestion, and what is the suggestion? That we are going to start a new session that is smart class from next year. मतलब इसी साल शुरू करना था. Next from next year onwards we are going to start a smart class. तो हमारे 32 टीवीज हमने ऑर्डर करना है बिकॉज नीचे जो B2 बिल्डिंग है उस ग्राउंड फ्लोर में जितने भी क्लासेस है वी आर गोइंग टू मेक देम स्मार्ट क्लास. तो उसके लिए 32 टीवी जरूरत है, स्मार्ट टीवी जरूरत है. सबने ओपिनियन दिया. क्या ओपिनियन दिया? चलिए सर फिलिप्स का ले लीजिए, किसी ने कहा एलजी का ले लीजिए, किसी ने कहा वीडियोकॉन का ले लीजिए, किसी ने कहा
ये वगैरह वगैरह, ये लीजिए बीपीएल का ले लीजिए, बहुत सारा टीवीज ब्रांड का नाम दिया गया है। वो मीटिंग उस दिन हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, देखो मैं बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट एक हफ्ता बाद या 5 दिन बाद दोबारा मीटिंग रखा गया। मैनेजमेंट के टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा, ओके सर हम सोचते हैं कि एलजी इज बेस्ट। फिर किसी ने कहा नो सर, एलजी में, एलजी वॉशिंग मशीन बढ़िया है, फ्रिज बढ़िया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी भी मत लीजिए, कंप्यूटर ये सब मत लीजिए। किसका ले, एचपी का ले लीजिए। चलते गया, वो चलता गया, वो चलता गया। फिर 2 दिन बाद फिर मीटिंग हुआ, फिर बोला गया कि चलिए तब एचपी फाइनलाइज करते हैं। नहीं सर पूरा एचपी मत लीजिए, क्या कीजिए सर, कुछ हाफ ये लीजिए, हाफ कंपनी कर लीजिए। हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन पीरियड में है ना, तो हम लोग को पता नहीं है कौन सा बढ़िया रहेगा स्मार्ट टीवी। तो एक काम कीजिए, 32 पूरा मत लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए, क्या 15-15 कर दीजिए, 15-17 कर दीजिए। इस तरह से हुआ, एक और दिन हुआ, बोले ठीक है सर एक काम कीजिए, तीनों ब्रांड ले लीजिए डिवाइड करके, एक 10 तो ये मंगा लीजिए, 10 तो ये मंगा लीजिए, 10 तो 12 तो ये मंगा लीजिए। मतलब एक ही मीटिंग 5 दिन हुआ, जस्ट टू परचेज अ स्मार्ट टीवी ऑफ 40 इंचेस, 42 इंचेस। उस मीटिंग 5 दिन होने के बाद टेंडर बुलाया गया, टेंडर गया दुकान में, टेंडर वाले ने अपना प्राइस लिस्ट दिया, वो प्राइस लिस्ट लेके कॉम्प्रोमाइज करके एक और टेंडर बुलाया गया, उसका प्राइस लिया गया, उसका प्राइस लेके दोनों का कंपेयर किया जाए, मुझे सस्ता कहाँ मिल रहा है। सस्ता देखने के बाद फिर टेंडर बुला के उसको टेंडर दिया गया। मतलब ये टोटल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 32 टीवी खरीदने के लिए लगभग लगभग 15 से 10 दिन लगा। उसके बाद टीवी आया। नाउ हु इज गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए अलग सा फिर एक इंसान बुलाया गया जो कम रेट में इंस्टॉल करे। 32 टीवी इंस्टॉलेशन इज नॉट अ जोक। एक 1 डे में इंस्टॉलेशन करना मुश्किल नहीं है, मतलब वो बहुत मुश्किल है, एक हफ्ता 10 दिन लग जाता है सिर्फ इंस्टॉलेशन करने के लिए, इतना सारा इक्विपमेंट्स है स्मार्ट क्लास का। उसके साथ बोर्ड अटैच करना है, प्रोजेक्टर अटैच करना है, पेन ड्राइव कैसे चल रहा है, कैसेट वाला डिस्प्ले कर सकते हैं, ये बहुत सारा फंक्शन है उसमें। तो वो इंस्टॉलेशन करने के लिए 2 आदमी की जरूरत था, तो 2 आदमी के लिए फिर कंपनी वाले ने अपना कोडिंग है कि हम अपने एम्प्लॉयज को भेजेंगे, दिन के मुझे इतना उसको गिन के दे दीजिएगा, मतलब पर डे 1000 रुपीज। कितने दिन में काम करेगा, 5 दिन लगेगा इस पूरा इंस्टॉलेशन, टीवी इंस्टॉलेशन करने के लिए। हम लोग यही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो व्यवस्था कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 1000 रुपीज पर डे। घंटा कितना काम करना था, जितना घंटा वो करे। तो दिस वॉज द थिंग्स। घर में ऐसा होता है क्या? इसीलिए कहा जाता है घर में जो काम हम लोग करते हैं दैट इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, बहुत लूज होता है, पानी की तरह होता है। एक जन ने डिसीजन ले लिया, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है आप ले लिए ना, कोई बात नहीं, चलिए पैसा फेंकने से मतलब है, पैसा दे दिए लेके आओ सामान। लेकिन आप एक जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, प्राइस देखना पड़ता है, बहुत सारा कुछ मैनेज करने के बाद ये काम होता है। तो ये होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप डिसीजंस। ओके सर। समझ में आया? यस सर। और कोई डाउट है? नो सर। कल ज्वाइन क्यों नहीं किया अभिजीत? सर कल मेरे बेस्ट फ्रेंड का दादाजी डेथ कर गए थे, तो हम पार्वती घाट में थे अरे बाप रे, और भयंकर वो कैसे? आ नहीं पा रहा था एक्चुअली। वो यूएस से बैंगलोर, बैंगलोर से फिर यहाँ पे आया आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से फिर वंदे भारत से आया यहाँ पे जमशेदपुर। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अभिजीत एमबीए लेके पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर रेगुलर क्लास नहीं करेगा और उसको रेगुलर अगर रिकॉर्डिंग वाला भेज दे तो फिर तो दिक्कत होगा ना। कि जैसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन में, हिंदी में समझा रहा हूँ, अगर अभी रिकॉर्डिंग मैम ने भेजता तो मैं इतना सारा एग्जाम्पल्स, इतना सारा रेफरेंस हम देते ही नहीं। आई जस्ट यस एक्सप्लेन सर। इन वेरी सिंपल वे इन इंग्लिश ऑन एन इंग्लिश कम्युनिकेशंस, बिकॉज एमबीए आपको पूरा पेपर इंग्लिश में लेना है, तो आई जस्ट कम्युनिकेट लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी, I just completed. Okay. So it's very difficult for you afterwards to get the actual meaning of that. लेकिन अगर आप रहते हो ऑनलाइन में तब क्या होता है कि बहुत सारा रेफरेंस मैं दे सकता हूँ, एकदम मतलब ऐसा रेफरेंस कि आप कभी भूलोगे ही नहीं।
जैसे आपको पता चल गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सॉरी क्या था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी अभी जस्ट पढ़ा है ना मैंने, मैं भूल गया। यस सर, एक होता है म्यूचुअल सर म्यूचुअल और एक होता है स्प्लिट। कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। तो अब अगर मुझे, अब तुम अगर नहीं रहता ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे अगर समझाना होता तो मैं इतना सारा एग्जांपल्स, वो जो एकदम लाइव एग्जांपल्स मैंने दिया, जो एक महीना पहले जो इतना बड़ा इंसिडेंट कदमा में हो गया, जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ, पेपर भर भर के लिखा गया था, और मतलब तब इतना मैं नहीं बताता और आपको हल्का सा एग्जाम्पल दे के रख देता, तो आपके लिए वो फिर क्लियर होना बहुत मुश्किल था, है ना। तो जिसकी वजह से कोशिश करो अभिजीत की एमबीए पढ़ाई कर रहे हो ना, इसके बाद आपको तो जॉब्स भी लेना है ना, तो अगर ये सब यस सर। जवाब सही से आप नहीं दे पाओगे, इफ यू कांट एक्सप्लेन दिस थिंग्स ऑन योर राइटिंग्स, राइटिंग में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन योर मींस इंटरव्यू आल्सो, तो मुझे नहीं लगता आपको उतना अच्छा पैकेज मिलेगा ना, जितना अच्छा जवाब आप दोगे क्लियरली, आपको उतना ही अच्छा पैकेजेस मिलेगा। तो कोशिश करो कि रेगुलर क्लासेस अटेम्प्ट करिए, तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। यस, ओके सर। ओके, सो ये तो हो गया आपका इनफॉर्मल फॉर्मल स्ट्रक्चर, होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नेक्स्ट आ जाते हैं लीडरशिप एंड फैसिलिटेशन टेक्निक, फैसिलिटेशन टेक्निक्स for group process, leadership and facilitation techniques for group processes. Okay, now effective leadership is a crucial for for guiding group processes towards successful outcomes. Okay, now क्या बोल रहा हूँ, effective leadership is crucial for guiding processes towards successful outcome। एक अच्छा रिजल्ट के लिए इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज आपका होना बहुत जरूरी है। आप में अगर इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होता है, तो आप क्रूशल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, क्रूशल फैक्टर्स आप नहीं ले पाओगे, और आप सक्सेस की तरफ आप आपका जो स्टेप है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला क्या है, लीडरशिप टेक्निक का पहला रूल्स क्या है, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस। लीडर शुड क्लियरली कम्युनिकेट विद द ग्रुप गोल, ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सुपरवाइजर हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तब आपको ये सब चीज बहुत क्लियर हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड द एग्जांपल्स ऑफ लाइफ। आप एक सुपरवाइजर हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग टाटा पेंट्स, एशियन पेंट्स, अच्छा हाँ एशियन पेंट्स और व्हाटएवर, और टाटा पिगमेंट्स व्हाटएवर, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, यू आर अ ब्रांड, यू आर रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड। ओके, अब आपका जो जूनियर्स है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो गोल है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो सबसे पहले आप अपने जूनियर्स को क्लियरली बता दीजिए। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, कंपनी ने मुझे ये टारगेट दिया है, मुझे ये टारगेट हर हाल में फिलअप करना चाहिए। आप लोगों की सहयोगिता के बगैर ये तो कंप्लीट नहीं होगा। आप लोगों का मीन्स, आप लोग अगर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो देन कंपनी विल नॉट गोइंग टू गिव यू द सैलरी। आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू गेट द सैलरी प्रॉपर्ली ऑन एंड ऑन टाइम। ओके, टारगेट दिया जाता है, इस टारगेट को हर हाल में इसी दिन मीट अप करना पड़ेगा, विद इन दिस डेज। मतलब क्लियर गोल, क्लियर एक्सपेक्टेशन, सब कुछ आपको क्लियर बताना पड़ेगा, तब जाके वो लीडरशिप का पहला इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होता है। समझ गए पहला पॉइंट? पहला पॉइंट इज इट क्लियर टू यू? यस सर। नेक्स्ट है fostering open communication. What is this meaning of fostering open communication? Now, creating an inclusive environment when all members feel comfortable sharing their perspective ideas. Fostering open communications का मतलब होता है, जैसे आप अपना गोल, अपना अचीवमेंट्स, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है, आपने अपना जूनियर्स को बताया, उसके बाद आप बोलिए कि अब आपका ओपिनियन क्या है। whatever the opinions are there, आपको सुनना पड़ेगा, you need to listen, आपको सुनना है, and according to that you need to make a decisions। आप अगर उनकी बात नहीं सुनोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रूट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, रूट लेवल में कहाँ दिक्कतें हो रही है। You need to listen the employers also, you need to listen those workers who are under your guidance।
आप जिसे सुपरवाइज कर रहे हो उनको भी आपको सुनना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी गोइंग टू कम आउट सक्सेसफुल। दैट इज कॉल्ड फोस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन। उसके बाद मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली, एड्रेसिंग डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव मैनर। उस ऊपर से आप तो ये भी देखते होंगे कि बीइंग अ सुपरवाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, आपके अंडर में जितने भी लेबर्स वर्कर है, कभी कभी डिसरेस्पेक्टफुली बात करता है, कभी कभी उनमें झगड़ा हो जाता है, कभी कभी आप जो चाहते हो वो नहीं कर पाता है, आपका जो टारगेट दिया जाता है वो फुलफिल कभी नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप उसे प्रॉपरली सेट डाउन होके बुला के बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये है इफेक्टिव लीडरशिप का एक और क्वालिटीज। चौथा है क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट है स्ट्रेंज मीटिंग्स। Sorry, not strange meeting, I'm sorry. Structured meeting. What is the structured meeting use? Using agendas, timekeeping and clear decision making processes. अब आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग्स रखना पड़ेगा। मीटिंग्स में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, ऐसा नहीं कि जो दो आया मन में बोल दीजिए, एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग। मीटिंग में क्या है स्ट्रक्चर्ड, आपका एजेंडा क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग्स क्या है, आपका डिसीजंस क्या है, वो सारा कुछ उस मीटिंग में क्लियर होना चाहिए। कोई सवाल नहीं, अगर सवाल है तो आप बोलिए, उसका जवाब दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड मीटिंग। ये है इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज का एक और इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्प्लॉइंग क्रिएटिव टेक्निक टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या जानते हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है न्यू आइडियाज जनरेट करना, न्यू टेक्निक्स जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। न्यू आइडियाज न्यू टेक्निक को जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब क्या, आपको नए आइडियाज लाना पड़ेंगे, नए आपको स्ट्रेटजीज अपने काम में दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप वो टारगेट फुलफिल करेंगे। आप पुराने सन 1947 का स्ट्रक्चर्ड मॉडल में ही आप अगर अपने एम्प्लॉयज को काम करवाओगे तो वो आपको उतना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्रिएटिविटी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट उसका भी बढ़े और आपका भी टारगेट फुलफिल हो। दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लानिंग। और लास्ट है ग्रुप रिफ्लेक्शन एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, इफ द रिजल्ट इज नॉट कमिंग और नॉट अप्रोप्रिएट टू द मार्क, देन down and talk with your employees that where are the loopholes are, where are the loopholes, where we are lacking behind, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, हम कहाँ स्लीप कर रहे हैं, हम कहाँ पर मतलब लैग आउट कर रहे हैं, लैग हो रहा है, हमारा कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। आप उस चीज को सॉर्ट आउट कीजिए और फीडबैक दीजिए। ये होता है इफेक्टिव लीडर स्किल्स का टेक्निक। समझ गए? Yes, sir. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. मैम नेक्स्ट है क्या? मुझे लग रहा है यही लास्ट स्लाइड है, यही लास्ट स्लाइड है। ठीक है अभिजीत, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं है ना? सर एक खत्म और हो गया? स्लाइड है सर। एक स्लाइड और, एक स्लाइड है और, बताइए दिखाई। हो तो गया, वही लास्ट स्लाइड फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, लीडरशिप। हो गया और नहीं है मैम? हाँ ये वाला होगा, 8 नंबर स्लाइड ना। दिखाइए। मैम ये तो नहीं पढ़े थे हम। अरे इससे पहले वाला स्लाइड में जाइए मैम। यहाँ तक, यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ से होगा। हाँ, leveraging diversity and incursions in group dynamics.
Okay, this is the another important topic, leveraging diversity. लिवर्जिंग डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी में आप कैसे अपने आप को ग्रुप्स को इकट्ठा आप रखते हो, दैट इज कॉल्ड लिवर्जिंग डाइवर्सिटी एंड इनकल्शंस इन ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स में आप कैसे, जब ग्रुप बिखर जाता है या फिर ग्रुप में मनमुटाव आ जाता है, ऑपोजिशंस आ जाता है, कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रोमाइज में आने की कोशिश नहीं करता है, तब आप ग्रुप को कैसे लिवर्ट करते हो, एकजुट करना। I forgot that particular word, that is called एकजुट करना, लिवर्जिंग, एकजुट करना। तब आपको क्या क्या स्टेप्स मेंटेन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, दैट आई मीन वांट टू एक्सप्लेन। टू क्रिएट एन इनकल्सिव एनवायरनमेंट व्हेन डाइवर्सिटी इज वैल्यूड, जब देख रहे हो ग्रुप में डाइवर्सिटी आ गया, मनमुटाव हो गया है कि अपना डिसीजन अलग अलग ले रहा है, एक साथ काम नहीं हो रहा पा रहा है, एक ग्रुप बिखर जा रहा है, एक ग्रुप आने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ग्रुप बिखर जा रहा है, तब आपको क्या करेंगे, तब व्हाट विल यू डू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Number one, recognize and challenge biases. Identify and address unconscious biases that may hinder the participations of the individuals from different backgrounds. कोशिश करिए फाइंड आउट करने के लिए बायसेस कहां पर हो रहा है। बायसेस का मतलब क्या होता है, एग्रीज, डिसएग्रीमेंट कहां पर हो रहा है। बायसेस का अनदर इंपॉर्टेंट मीनिंग इज डिसएग्रीमेंट। कहां पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कहां लूप फॉल्स हो रहा है, कहां लैग बिहाइंड हो रहा है, सबसे पहले उस चीज को फाइंड आउट करना है। इफेक्टिव लीडर्स का ये क्वालिटी है। अगर ग्रुप को बचाना है तो यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, वेयर फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम इज अराइजिंग, कहां से ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो रहा है, सबसे पहले आप उस चीज को समझिए, फाइंड आउट कीजिए। दूसरा क्या है, प्रोमोट रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशंस। इसके बाद यू नीड टू ब्रिंग both the opposition parties under one table, and very effective way you need to communicate with them. If possible, communicate with them separately. That first of all, listen to them. What is your problem? Why are you not performing? Why you are not performing properly? Why the performance is so poor? You need to communicate with them very effectively. And then you call the next group. What is your problem? Why you are lacking behind? Why you are not giving you 100% for this project? What is the problem you are having right now? Tell me. अब उसे आप ब्रीफ कीजिए, you need to brief it down or jot down the points, that this is the point this particular group is having, and this is the point, say particular B is, group B is having the problem, and now you need to sort out, and you need to come under, you need to come to the compromise thing, you need to come to the compromise mode, that I need to come to the compromise mode to make the group leverage। ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए आपको दोनों को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में या स्टेज पे लाना पड़ेगा। तीसरा क्या है, वैल्यूज डाइवर्स पर्सपेक्टिव, एक्टिव सीक आउट एंड कंसीडर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल मेंबर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, और आइडेंटिफाई कौन कौन बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन किसका काम करने का तरीका है, कौन कितना साल काम किया, ये सब छोड़ के सबको एक जगह पर लाइए, बातचीत कीजिए, ओपन फोरम में बात करने के लिए बोलिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रहा है, ओपन फोरम में डिस्कशन कीजिए, not in the closed positions, discuss in open positions, then only the problems will going to solve it out, otherwise no, that will remain the same। next है, provide equal opportunities for participants, जितने भी participant group participation वहां पर हुआ सर है। इस ये वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए ना, कौन सा पॉइंट, वैल्यू डाइवर्स वाला। वैल्यू एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। वैल्यू एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव मतलब होता है कंट्रीब्यूटर्स और जितने भी मेंबर्स, उनका कंट्रीब्यूशंस ग्रुप में हुआ है, उन सबको एक जगह पर लाइए, उनका डिसीजंस, उनका मोटिव, उनका आइडियाज, उनका थॉट्स आपको सुनना है, और अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू टेक द डिसीजन, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस लेना है, देन ओनली इट विल गोइंग टू गेट आउट सक्सेसफुल। इट इज कॉल्ड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल मेंबर्स, इसे कहते हैं वैल्यू डाइवर्स रिस्पेक्टिवली। वैल्यूज, आइडियाज डाइवर्स हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उन्हें बुलाइए और फिर बातचीत कीजिए। जब तक आप बातचीत नहीं करोगे तब तक वो सॉर्ट आउट कभी नहीं होगा। जैसे होता है ना यार, बहुत सारे हाई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होता है, से फॉर एग्जांपल अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, हमास और इसके इसराइल के बीच में
अभी वर्ल्ड वॉर हो रहा है, पता है ना आपको? हमास और इसराइल, नितिन याहू अभी अटैक्स कर रहा है हमास के ऊपर। Yes, sir. हमास आर द बिग टेररिस्ट, उनको अटैक कर रहा है। नाउ लीडर ऑफ हमास एंड इसराइल, इसराइल के प्राइम प्रेसिडेंट अब दोनों एक साथ आने के लिए कोशिश कर रहा है। पूरा वो नेशन चाह रहा है कि दोनों एक साथ आए, बातचीत करें। आइडियाज दोनों में डाइवर्स है, डिफरेंट आइडियाज है। डाइवर्स का मतलब दोनों की सोचने समझने की शक्ति समझने की जो स्थिति है वो अलग अलग है। दे आर ऑल हैविंग डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थॉट, डिफरेंट परसेप्शंस, एंड द नेशंस, world nations, atomic power nations, they want these two countries to come down and to resolve their problem sitting in a table. Okay, but Yahoo, Nitin Yahoo is doesn't want to listen. Nitin Yahoo कह रहा है कि नहीं, this Hamas are the terrorists. They are the threat to the world and they are threat to the our country also. And I am not in a position to compromise with this Hamas. और अभी भी फायरिंग हो रहा है, आज भी युद्ध विराम लगा हुआ है, कल से फिर चालू हो जाएगा। इजराइल रॉकेट्स, लॉन्चर्स, व्हाट नॉट्स, सब ये हो रहा है। हमास को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो कुछ कंट्रीज जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कुछ कंट्रीज जो है हमास को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान ने हमास को सपोर्ट कर रहा है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है ये अभी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज अ हाई प्रोफाइल थिंग्स। ओके, तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बताया कि डाइवर्स आइडियाज, डाइवर्स होने के बावजूद भी वर्ल्ड नेशन कोशिश कर रहा है कि इस दोनों कंट्रीज को एक जगह लाए और रिजोल्व करने की कोशिश करे। पर अगर सुने तब ना, आ गया ये चीज समझ में आ गया? Yes, sir. clear to you? And the last one is provide equal opportunities. इसका मतलब क्या है? आप अगर उस कंपनी के सुपरवाइजर हो, आपके अंडर में अगर लेबर्स काम कर रहे हैं, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए ताकि वो आए, बातचीत करे, और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहे तो वो सॉर्ट आउट हो। दिस इज द थिंग। समझ में आ गया? टू अचीव ग्रेट सक्सेस, सॉरी द लास्ट लाइन, सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। ये फॉलोइंग स्टेप्स है टू क्रिएट एक गुड एनवायरनमेंट इन अ डाइवर्स। देखिए अभिजीत, आप भी जानते हो कि आपके अंडर में जितने भी काम करते हैं वो हर एक आपका आइडियाज के साथ उनका आइडियाज कभी मैच नहीं करेंगे, होगा क्या? लेकिन फिर No, भी वो sir. काम कर रहे, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज में काम कर रहे हैं। इन कॉम्प्रोमाइज मोड एवरी ह्यूमन बीइंग इज वर्किंग। चलना है, करना है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगा, उसको ये प्रॉब्लम होगा, मेरा ये प्रॉब्लम होगा, चलिए कॉम्प्रोमाइज करें, काम चुपचाप कर लेते हैं। पूरा इंडिया ये भी कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में है और कॉम्प्रोमाइज वे में ही काम कर रहे हैं। क्लियर है? Yes, yes, sir. Clear. चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ओके, Thank you, sir. थैंक यू।